Good morning, students. Welcome to the online classes of RRB Group of Schools. Today, we shall see the summary of your next topic, and the lesson name is Ivan tries an O level, written by Colin Dexter. Colin Dexter was a famous crime English writer, and he was famous for his eminent creation of Inspector Moore's series of novels, and for this he also got the prize. तो आज का चैप्टर बेटा जो है उसे हम कहेंगे इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल. इट इज रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर. कॉलिन डेक्स्टर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी आपराधिक उपन्यासों और सीरीजों के लेखक थे, एंड हु वाज आल्सो फेमस फॉर हिज इंस्पेक्टर मोड सीरीज ऑफ नॉवेल, एंड लेटर ऑन इट वाज अडॉप्टेड एज अ सीरियल सीरीज. बाद में इसको सीरियल या एपिसोड के रूप में भी अडॉप्ट किया गया था. So let's see about the story. Some important characters of the story are Secretary of Education Board. Secretary of Education Board. Another main character is HM Prison Governor, Oxford. Next character is Evans, a criminal. Mr. Jackson, a prison officer. Mr. Stephen, a prison officer. McLeary, invigilator. So, these are the main characters of this story. The story begins with a criminal named Ivan. कहानी की शुरुआत एक क्रिमिनल इवान से होती है. इवान, whose full name was James Roderick Evans. He was a jailbird, and prison officer used to call him Evans the Brick. So, characters of the story बेटा, let's see. एक बार फिर से देख लेते हैं. Evans tries an O level is one of the master creations in English literature penned by Colin O. Dexter. Evans tries an O level, Colin O. Dexter की एक अनुपम कृति है बेटा. Colin O. Dexter जो अपने उपन्यासों की एक श्रृंखला इंस्पेक्टर मोड सीरीज ऑफ नॉवेल के लिए फेमस थे, और इस स्टोरी के कुछ बेटा कैरेक्टर्स: सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन बोर्ड, HM प्रिजन गवर्नर ऑक्सफोर्ड. इवान, हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द स्टोरी, he is a criminal. Mr. Jackson, a prison officer. Mr. Stephen, a prison officer. McLeary, invigilator. So the story begins with a criminal named Ivan, whose full name was James Roderick Evans. He was a jailbird, and the prison officer used to call him Evans the Brick. Why? The reason of calling this name was that Evans had a specialty of escaping from the prison, and he had escaped from the prison 3 times. And that was the reason now he was in the prison of Oxford. He was in Oxford prison now.
इवांस, जिसका पूरा नाम जेम्स रोडरिक इवांस था, जेलबर्ड और प्रिजन ऑफिसर उसे इवांस द ब्रेक के भी नाम से जानते थे। क्या कारण था इसका? कारण इसका यह था कि इवांस के पास जेल से भागने की एक अद्वितीय कला थी, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन द प्रिजन ऑफिसर यूज्ड टू कॉल हिम इवांस द ब्रेक। ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन 3 times। वो 3 बार जेल तोड़कर भाग चुका था या जेल से भाग चुका था, एंड दैट वाज द पर्टिकुलर रीजन ही वाज इन ऑक्सफोर्ड प्रिजन नाउ। एंड व्हाई वाज इवांस इन ऑक्सफोर्ड प्रिजन? बिकॉज Oxford prison was supposed to be one of the safest prison in the world। इवांस को ऑक्सफोर्ड प्रिजन में इसलिए रखा गया था क्योंकि ऑक्सफोर्ड प्रिजन को विश्व की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है। So what happened with Ivan? One day, Secretary of Educational Board gets a call from HM Prison Governor Oxford। One day, Secretary of Education Board gets a call from HM Prison of Governor Oxford, and the Governor HM Prison Oxford informs him that Ivan has started to get night classes in O-level German so that he might get an academic qualification। सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन बोर्ड को एचएम प्रिजन गवर्नर ऑक्सफोर्ड की तरफ से फोन जाता है और जिसमें यह बताया जाता है कि इवांस ने जो है वो नाइट क्लासेस को लेना स्टार्ट कर लिया है। क्यों? ताकि वो जर्मन में ओ लेवल की एकेडमिक क्वालिफिकेशन को पास करे। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एचएम प्रिजन गवर्नर, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन बोर्ड गॉट हिज परमिशन, बट एज द गवर्नर न्यू that Evans was very capable from escaping the prison, so all the arrangements were made, as well as he decided to host the examination in Evans' room। HM प्रिजन गवर्नर को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि इवांस जो है वो जेल ब्रेक करने में, सेल ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए सारे जरूरी प्रबंध यहाँ तक कि पेपर का भी जो होस्ट करना था वो भी इवांस की सेल में ही किया गया। So all the responsible persons, all the authorities of HM prison do their best to excel the Evans at the examination। They hire a German tutor to educate him, and the tutor teaches him for 6 months। He wishes Evans best luck, but it was his opinion that he is not able to pass out in the examination। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए प्रिजन के जितने भी ऑफिसर होते हैं वो अपना पूरा प्रयास करते हैं। वो एक जर्मन ट्यूटर को हायर करते हैं और वो जर्मन ट्यूटर 6 महीनों तक इवांस को लगातार टीचिंग देता है ताकि वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर सके। उन्होंने उनकी पूरी सहायता की, एंड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड इवांस डिफेंस ऑफ द ट्यूटर। इवांस जो था वो उस ट्यूटर का एक फ्रेंड बन गया। द ट्यूटर विशेस हिम लक, but it is his opinion that Evans is not able to qualify the examination। ट्यूटर उसे विश तो करता है लेकिन उसका भी एक कंसेप्ट था that Evans is not able to qualify in the examination, but Evans tells him that he may surprise everybody। Evans ने ये कहा कि मैं हर किसी को क्या कर सकता हूँ, सरप्राइज कर सकता हूँ, and Evans does it। जो उसने कहा वो उसने किया। कैसे? The time of 6 months passes, 6 महीने का समय बीत जाता है, and the final day of examination arrives। All the necessary arrangements were managed in the cell of Evans। जितने भी जरूरी प्रबंध थे वो सब इवांस की सेल में कर दिए गए। The guards inspected his cell, observed everything, and they take away anything like razor, blade, and other utensils, so that Evans may not use them for injure himself। जितने भी वहां पर सामान थे वहां पर सबने गार्ड से उसको हटा लिए जिससे इवांस अपने आप को उनसे इंजर्ड न कर ले। They also wanted to take the cap, but Evans requested that it was his lucky charm। So on the request of Evans, they did not take his hat।
वो उसकी टोपी को भी लेना चाहते हैं, लेकिन इवांस ने उनसे रिक्वेस्ट की दिस इज माय लकी कैप। तो रिक्वेस्ट करने पर गार्ड्स ने क्या किया, उसकी कैप को छोड़ दिया। द एग्जाम एग्जीक्यूट विदाउट एनी ट्रबल एंड मिस्टर स्टीफन एस्कॉर्ट द इन्विजिलेटर, ध्यान से देखिएगा बेटा, मिस्टर स्टीफन एस्कॉर्ट द इन्विजिलेटर आउट ऑफ द मेन गेट। सेंट मैरी मैक्स से एक इन्विजिलेटर भी आया था, सो दैट ही मे ऑब्जर्व द एग्जामिनेशन, ताकि वो उस एग्जाम को ऑब्जर्व कर सके। और जैसे ही एग्जाम जो है वो ओवर होता है तो मिस्टर स्टीफन एस्कॉर्ट के थ्रू क्या करते हैं, इन्विजिलेटर को गेट के बाहर छोड़ देते हैं। बट व्हेन दे रिटर्न इन द सेल ऑफ इवांस, they found out that the invigilator was lying injured on the floor and Evans was not there. थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आई होगी आपके मन में कि इफ मिस्टर स्टीफन एस्कॉर्ट्स इन्विजिलेटर टू आउट ऑफ द मेन गेट, अगर मिस्टर स्टीफन ने मैकलेरी को गेट के बाहर छोड़ा तो हु वाज लाइंग इंजर्ड ऑन द फ्लोर? द रियलिटी वाज दैट Evans had escaped from there in disguise of the invigilator. इन्विजिलेटर के छिपे या छद्म वेश में इवांस वहां से निकल चुका था और इन्विजिलेटर जो था वो घायल अवस्था में फ्लोर पर, फर्श पर पड़ा हुआ था। So the officers admitted the invigilator in an hospital and they started to search out Evans, but Evans was nowhere. Evans कहीं भी नहीं मिला। And finally, when they returned to ask what had happened in the cell, they also found out that the invigilator was also not in the hospital. इवांस का जब कहीं कोई पता नहीं चलता तो ऑफिसर्स फिर हॉस्पिटल में आकर लौटते हैं ये पूछने के लिए इन्विजिलेटर से कि आखिर वहां पर हुआ क्या था, और तभी उन्हें ये पता चलता है कि वहां पर वो इन्विजिलेटर भी नहीं हॉस्पिटल में। On the absence of the invigilator in that particular hospital, they went to his residence where they found a puzzle, a piece of paper on which a puzzle was made. And through the help of the puzzle, they came to know that it was a pre-plan. The invigilator was a friend of Evans who together swabbed people and made them fool. हॉस्पिटल में जब इन्विजिलेटर नहीं मिला ऑफिसर को तो वो उसके घर पर जाते हैं और उसके घर पर एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पर कुछ पजल्स लिखी हुई होती हैं। एचएम प्रिजन ऑफिसर गवर्नर ने क्या किया कि उन पजल्स को पुट टुगेदर एक साथ किया और उससे जो उसे दिखाई पड़ा उसके होश उड़ गए। क्या पता चला उसको कि जो इन्विजिलेटर के फॉर्म में आया था वो इन्विजिलेटर इवांस का पहले का ही एक मित्र था और दोनों मिलकर चोरी किया करते थे और लोगों को बेवकूफ बनाते थे। On getting the clue where Evans may be, ये सूचना मिलती है कि इवांस कहाँ हो सकता है। So they went to a certain hotel where Evans was stayed. वो एक होटल में पहुंचे जहां इवांस रुका हुआ था। And they captured him. उन्होंने उसे पकड़ लिया। On capturing of the Evans, HM prison governor felt some relaxation and he smiled, thinking that his game has come to an end. इवांस जब पकड़ा गया तो एचएम प्रिजन गवर्नर को थोड़ी राहत की सांस महसूस हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। वो जहां से निकलकर भागा था एक बार फिर वो वहीं पर लौट आया है। बट दैट वॉज नॉट द रियलिटी। व्हेन एचएम प्रिजन गवर्नर सेंट इवांस टू अ प्रिजन वैन, ही डिड हिज लास्ट स्टंट because the prison van and the officers who were in the prison van were also his men, fellow men. होटल से पकड़ने के बाद एचएम प्रिजन गवर्नर ने क्या किया, जो होटल के सामने प्रिजन वैन खड़ी थी उसने उसको भेज दिया कि जाओ इसे लेकर जाओ, जहां से आए वहीं पर इसको फिर से रख दो, वहीं पर इसे भेज दो फिर से। लेकिन वो प्रिजन वैन और उसमें बैठे हुए ऑफिसर वो इवांस के ही आदमी थे। And in this way, Evans had become now a free man. Evans जो था वो अब बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हो चुका था। Evans knew this fact very well that after escaping from the Oxford prison, it would not be easy for him to escape from the city.
तो दिस वॉज ऑल्सो अ ट्रैप ऑफ इवांस, ये भी इवांस की प्लानिंग थी। उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन से निकलने के बाद उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा शहर को छोड़कर जाना, इसलिए जानबूझकर होटल में छिपे होने की जानकारी उसने पहुंचाई। वहां पर उसे जब कैप्चर किया गया तो उसके लिए उसने पहले से ही प्लानिंग बनाई थी। एक पुलिसमैन, उसमें कुछ गार्ड थे और वो सब उसी के आदमी थे, और अपने फाइनल स्टंट, फाइनल वर्क की वजह से इवांस अब उनके चंगुल से निकल चुका था। एंड नाउ ही वाज अ फ्री मैन, अब वो पूरी तरह से आजाद था। एंड द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन कुड नॉट डू एनीथिंग टू कैच हिम, वो उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर सके। So what moral does the story arise? The moral that the story arises is that should criminals be given the opportunity of learning and education? क्या अपराधियों को भी पढ़ने और शिक्षा देने का अवसर हमें क्या करना चाहिए? देना चाहिए। So that was the summary of your this chapter, and in next video we shall see another summary of your course. Till then, have a nice day. Goodbye.